Mr. Counsel, now I will impose heavy cost. मजाक बना के रखा हुआ है. Whatever it may be, don't utter a single word. You have already lost your face. Mr. Rajesh, कुछ भी हो, जो भी हो, I have already passed the order. पर आप लोग झूठ बोल बोल के एडजर्नमेंट्स ले रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और अपने जूनियर्स को वकालत सीखने ना देके उनको गलत बयानी करने की आदत डाल रहे हैं. आप तो मुकदमा तो जो बढ़वा रहे हैं सो बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं, नई जनरेशन को भी बिगाड़ रहे हैं. बाहर गए और फिर आए, फिर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं लॉर्डशिप, एक इनोसेंट आदमी के ऊपर लांछन लगाते हुए आपको और बुरा नहीं लग रहा है? when my associate was appeared there, lordship, that matter was dismissed in default, lordship. That matter was attending by the Mr. बहुत Rajesh. अच्छे, आप तो जयपुर से आ गए. नहीं लॉर्डशिप, I was नहीं, Mr. Rajesh. Mr. Counsel, now I will impose heavy cost. मजाक बना के रखा हुआ है. नहीं लॉर्डशिप, Whatever it may be, don't utter a single word. You have already lost your face. Mr. Rajesh. कुछ भी हो, जो भी हो, I have already passed the order. अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो क्या टिकट नहीं खरीदते हैं? नहीं लॉर्डशिप, he is first time appear before. फर्स्ट टाइम हो या आखिरी टाइम हो, आई एम लीस्ट My कंसर्न. mistake is ऐसे ही, वो आउट ऑफ स्टेशन नहीं थे, उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी नहीं. मिस्टर काउंसल, आई हैव ऑलरेडी डिसमिस दैट. आप लोगों को जरा सा भी नहीं लगता है कि सब झूठ बोल रहे हैं हम कोर्ट में? नहीं सर, और जब पकड़े गए और फिर अब आप खड़े हो गए, नहीं सर वो आदमी को नहीं अकल. आप अपने लॉयर के खिलाफ बोल रहे हो सर, अपनी खाल बचाने के लिए अपने साथी के खिलाफ बोल रहे हो. सर वो Whatever it is really bad on the part of the counsels to make false excuses for adjourning, for getting the matters adjourned. सब जयपुर गए हैं. नहीं लॉर्डशिप, he is Whatever it is. Thank you. अच्छा, आपका नाम क्या है सर? आपका योगुड नेम? मैं लेटर ऑन करके और लिखिएगा. लॉर्डशिप, श्री समीर ब्योहर सबमिटेड दैट. Mr. Rajesh, he is appearing on behalf of Mr. Samir Biohar appeared and submitted that earlier that the arguing counsel is not out of station, and the false excuse was given on the earlier occasion. Full stop. This court has already. I'm making apology. You should not have appeared now. Once you have appeared, allow me to write whatever you have stated. Lordship, Whatever you have stated, please allow me to write. You can't stop me from writing the submissions made by the counsel. It is later on. It is submitted. I'm making apologies. Don't apologize because your counsel has not has a dare to. He's Whatever it is, sir, please. Lordship, my apologies. may be Please, accepted. when I am dictating the order, don't interfere. My apologies may be accepted. Don't Lordship. interfere when I am writing the order. Later on, Shri Samir Biohar appeared in the second half of the day and submitted that the arguing counsel is within this, it has not gone anywhere. And a false excuse was given by Shri Mayank, police sister. It is really shocking that the lawyers are making that. My apologies. It is may- really shocking that a false excuse was made by the counsel to get the matter adjourned. This court, in the case of so-and-so, has already held that asking for unnecessary adjournment amounts to professional misconduct. Police system, be that whatever it may be. Earlier, this court had not imposed any cost, but in view of the specific admission made by Shri Samir Biohar that the arguing counsel has not gone anywhere and he is in this city, the petition is dismissed with cost of ₹5,000 to be deposited by the petitioner in the registry of this court within a period of 1 month from today. In case if the cost is not deposited, the Registrar General is directed to initiate the proceedings for recovery of cost apart from
and shall also register a case for contempt of court. So my apologies maybe. किस बात की apology sir? I'm just explaining only lordship ki he Mr. Counsel, आपको कुछ नहीं मालूम है. इन्होंने मेरे से कहा वो आई थिंक गए हैं जयपुर, राइट? मैंने कल भी बोला था, कल या परसों बोला था, आपका चेहरा सब बता देता है, बस पढ़ने वाले चाहिए. और बदकिस्मती है आप लोगों की कि हम चेहरा पढ़ लेते. सर मैं समिति आप सुनने की आदत भी डाली है. I'm sorry. Right? I have not invited you to make any submission. Once you have voluntarily decided to serve your colleague, then be ready to hear they also. ये आप लोगों की बदकिस्मती है कि आपके चेहरे हम पढ़ लेते हैं, राइट? जब इन्होंने कहा तो हमने इनसे कहा कि आप जाइए पूछिए कि क्या आप ये करेंगे, तो ये 10 मिनट के बाद वापस आए, बोले हम नहीं करेंगे. तो इन्होंने जाके पूछा भी. ऐसा नहीं है कि इन्होंने घबराहट के मारे या अपने मन से कुछ झूठ बोला हो. क्या बात करते हो यार आप? क्यों गए थे? और जबकि मैंने इनसे कहा भी था अगर वो, क्योंकि वो फोन मत करना, क्योंकि वो बाहर कॉरिडोर में खड़े हैं, सुनिए. और अगर वो ये पेश नहीं करना चाहते हैं तो कृपया करके वापस कोर्ट में मत आइएगा. हम समझ जाएंगे कि आप झूठे एक्सक्यूज दे रहे हैं. हमने वहां तक भी लिबर्टी दी थी कि भैया आप तो हमें प्रिजम्पशन ड्रॉ करने दीजिएगा, आप मत आइएगा. आए. फिर उन्होंने कहा कि ये जयपुर में अपने रिश्तेदार के घर ठहरे. आप कहते हैं कि सब ये झूठ बोल रहे हैं. क्या झूठ बोल रहे हैं सर? आपके 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 जो आर्गुइंग काउंसिल जो है इनको झूठ पे झूठ बुलवा रहे हैं. एक जूनियर ने ऑफिस वकालत सीखने के लिए किया है, ज्वाइन किया है कि झूठ बोलने के लिए? आपने तो इनकी वकालत शुरू होते ही इनका चेहरा खराब करवा दिया कोर्ट के सामने. परंतु ये इतने इनोसेंट है. आज जितने भी जूनियर्स को से झूठ बुलवाया जा रहा है वो सारे इतने इनोसेंट हैं, उनका चेहरा बोल देता है. उनकी इनोसेंस को बर्बाद मत करो भाई. He was not instructed. Whatever it may be, ये दोबारा जाके पूछते हैं कि ये कहते हैं कि वो जयपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पे. रिकॉर्डिंग सुननी है? I am not. आप फिर क्या, क्यों उनकी तरफ देख रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि पहले स्टेटमेंट के ऊपर ऑर्डर हुआ है. He was requested to seek instructions. He went out, came back, then again he made a statement. आप कहते हैं कि साहब हमारा जो कलीग है वो इतना सच्चा आदमी है. सच्चे तो ये हैं जिनके भोलापन से इनकी झूठ चेहरे पे दिख गया था. वो झूठ जो आपने बुलवाने के लिए, बोलने के लिए मजबूर किया था. ऐसे इंसान की तरफदारी करने के बजाय आप इन पे लांछन लगा रहे हैं कि सब ये झूठ बोले अपने मन से. क्या समीर व्यवहार जी? सॉरी सर. I'm making apologies. Lord. Don't apologize. You have not committed any mistake. आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो अपने साथी को, क्या राजेश उपाध्याय जी कौन है? राजेश उपाध्याय. उनको तो वॉलंटरी सर्विसेज देने के लिए कहा कि यार मैं जाता हूँ कोर्ट में, मैं करवा के लाता हूँ, चिंता मत. कुछ नहीं सर, 5,000 की कॉस्ट आउट हो गई. कुछ नहीं होगा सर. मिस्टर व्यवहार, आप लोग झूठ बोल बोल के एडजर्नमेंट्स ले रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और अपने जूनियर्स को वकालत सीखने ना देके उनको गलत बयानी करने की आदत डाल रहे हैं. आप तो मुकदमा तो जो बढ़वा रहे हैं सो बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं, नई जनरेशन को भी बिगाड़ रहे हैं. क्या ये सीखेंगे? ये कच्ची मिट्टी है सर. जैसी मूर्ति बनाएंगे वैसे बन जाएंगे. और जब ये आपके ऑफिस में आए हैं तो इन कच्ची मिट्टी को सही मूर्ति का शेप देने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं. और आप यहाँ खड़े होके उनको दोष दे रहे हैं. दोष है क्योंकि वो इनोसेंट है. So he was not instructed like that. Yes, he was not instructed like that. उसके बाद बाहर गए और फिर आए. फिर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं लॉर्डशिप. एक इनोसेंट आदमी के ऊपर लांछन लगाते हुए आपको और बुरा नहीं लग रहा है?
कम से कम इनमें मैं रोज देख रहा हूं कि जितने भी यंग बच्चे आए हैं वो इतने इनोसेंट हैं कि उनके चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितना झूठ बुलवाया जा रहा है उनसे। और मैंने परसों भी बोला था, नहीं समझते आप लोग सर, आप नई पीढ़ी को खराब शायद ना कर बैठे, इसीलिए मैंने ये किया है। अगर किसी ने आपका ऑफिस ज्वाइन किया है ये मानते हुए कि वो आपके यहाँ से वकालत सीखेगा, प्लीज teach them how to prepare the cases, how to argue the cases, instead of asking them to adopt a wrong method. वो किस उम्मीद से आपके ऑफिस में आए? सीखने के लिए आए थे ना? और आपको क्या सिखाया जा रहा है? और जब वो बेचारे नहीं आपकी मनमाफिक काम कर पाते तो आप उन्हीं पे लांछन लगा देते, क्योंकि उनकी तो बच्चों की तो हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की कि साहब आपने झूठ क्यों बोला कोर्ट में। आपने तो मेरे से बोला था। ऐसा उनको कानून सिखाओ, तैयारी करवाओ आर्ग्यू करने के लिए, मुकदमे झूठ बोल के बढ़वाने के लिए मत कराओ। इतना ही कहना चाहता हूँ, मर्जी है आपकी, चेहरा है आपका। Yes, sir. That is चलिए। Item number 43.